Hello, very great afternoon, dear friends. How are you? Today we are going to discuss very important questions of NCERT exercise, which are very useful regarding to your examinations, regarding to your unit test. So, dear friends, there must be better preparation of these questions because these questions are very and you can say these questions are much important for your examination. So, dear students, let's start. Okay, come to the point. What is the question, beta? An object 5 cm in length is placed at a distance of 20 cm in front of convex mirror. क्वेश्चन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बेटा उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप बहुत अच्छे से रीड करें. देखो लिखा क्या है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ. सो गिवन में क्या है आपके पास, whenever we discuss the solution of this question, so what we have to do, let's see the solution. What is given here? We have given the size of object. Here given size of object. Object का size कितना है आपके पास? This is equal to 5 centimeter, 5.0 centimeter. Is placed at a distance of 20 centimeter in front of convex mirror. Distance of object. Distance of object. And what is the distance of object? This is equal to minus 20 centimeter. ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? u से रिप्रेजेंट करते हैं, एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर. ये सुनो. सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट? minus 20 centimeter in front of convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Given radius of curvature और कितना है यहां से 30 सेंटीमीटर प्लस 30 लिखे आप, क्योंकि बेटा देखो अगर ये लेंस, अगर ये मिरर हमारा कॉन्केव होता तो यहां पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो किस होता? नेगेटिव होता है. फोकल लेंथ आपकी किस में आती है? नेगेटिव में आती है. ठीक है कि नहीं? सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव क्यों लिया है? वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर, बट आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन. फिर से आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा मिरर के फ्रंट में रखा जाता है. जैसे सपोज हम कोन कन्वेक्स है तो यू कैन सी लाइक हियर, तो ये हमेशा देखो फ्रंट में रखा, जैसे यहां पे रखा हुआ. इससे इस साइड में ऑब्जेक्ट जो आपके पास आएंगे उनका साइन आपका कैसा रहेगा? क्योंकि अलोंग द इंसिडेंट रे आएंगे तो पॉजिटिव, अपोजिट आएंगे तो आपके पास आएंगे नेगेटिव. और मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका डिस्टेंस आपने क्या रखा है? यहाँ पे नेगेटिव ले रखा है, क्योंकि ओके. So distance of object आपके पास क्या है? Because the distances which are along the direction of incident ray are taken as the positive and which are opposite to the incident ray are taken as the negative. So distance of the negative क्यों ले रखे हैं यहाँ पे object का distance? Because it is placed on this side and it is taken as the negative. Okay. And find the position of the image. So distance of image. Distance of image V that I have to find out. Okay, ये हमारे पास दे रखा है, लेकिन इससे पहले फोकल लेंथ यहां से निकालें. इसकी फोकल लेंथ क्या है गिवन की? F. What is the formula? Focal length is half of radius of curvature. That is r by 2. And what is the value of r? The value of r is 30. 30 by 2. This is 15 centimeter. Because mirror is convex, so focal length is always positive. Concave होता तो नेगेटिव लेते. फोकल, एक चीज आपको बता दूं बेटा, whatever may be concave mirror, whatever may be convex mirror, whatever may be convex lens, whatever may be concave lens, object distance must always taken as the negative. Most probably. वो तो अपना देखो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, कोई केस अपना ऐसा जाता है जब ऑब्जेक्ट अपना दूसरी तरफ रखा है
तो डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 99% हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ आपके पास आ गई 15 सेंटीमीटर। सो हियर फोकल लेंथ f is equal to 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? As we know that mirror formula is given as what is mirror formula? This is 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f. 1 upon u, what is the distance of that? Minus 20 plus 1 upon v, and what about focal length? This is equal to 15 centimeter, 1 upon 15 मीटर। ये हमारे पास है मेरा फॉर्मूला 1 upon u plus 1 upon v, 1 by f। u की वैल्यू आपके पास minus 20, v की वैल्यू तो वैल्यू I have to find out, फोकल लेंथ आपके पास है 15। क्लियर? ओके, so 1 upon v, 1 upon 15 प्लस माइनस का है पर जाके प्लस का 1 upon 20। ठीक है, एलसीएम का जाएगा इसका 60, 1 upon v is equal to 60, 15 4 जा 60, 20 3 जा 60, that is 7 by 60, and what is the value of v from here? 1 upon v is equal to 7 upon 60, and v upon 1 60 by 7, the value of v is found to be 60 by 7 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू जो आपके पास आगे वो कितनी आएगी? 60 by 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखते हैं, और इसको नंबर 1 दे दो, इसको आप ऐसे लिखते हैं। जब भी सिंप्लीफाई करोगे बेटा ऐसे सिंप्लीफाई करने के बाद इसको आपने क्या करना है? उल्टा कर देना इसको। ठीक है, तो b by 1 60 by 7, तो b 60 by 7। ठीक है, तो यहां से 60 by 7 और मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, डेसिमल में लेके आऊं, 7 8 56, आगे अपने पास 4 40, 7 5 35, 5 7 7 जा 49, तो v is equal to 8.57 सेंटीमीटर। So what is the value of v from here? The value of v that we have found, it is करते हैं यहां से, okay, what is the value of v? v is 60 by 7 सेंटीमीटर और 8.57 सेंटीमीटर। ठीक है, द इमेज, देखो ये बेटा आपके पास दिस इज जस्ट ऐसा कन्वेक्स मिरर, दिस इज पोल, ये पोल हो गया अपना, पोल से ऑब्जेक्ट हमने रखा इधर इस साइड में, ये ऑब्जेक्ट आ गया हमारा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, बिकॉज रे ऑफ लाइट इज गोइंग अलोंग दिस डायरेक्शन, जैसे सपोज करो हमारे पास ऐसे जा रही है ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड opposite to incident ray, that is why sign of object is taken as a negative and the distances along the direction of incident ray are taken as the positive। तो इमेज जो आपकी बनी है ये कैसी आई है? v is equal to 8.57 में इसका जो साइन आया है, इमेज का जो साइन आया बेटा, that is a positive sign। तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव साइन है, तो इमेज आपकी यहाँ बनी है, इधर बनी जाके, इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन फ्रंट ऑफ मिरर। जब फ्रंट ऑफ मिरर में रखेंगे तो नेगेटिव, और आंसर जो आपके पास आया हुआ है ये किसमें है? पॉजिटिव। तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो इमेज बनी है दैट इज बिहाइंड द मिरर बनी है। कहां बनी है? बिहाइंड द मिरर। द इमेज इज फाउंड behind the mirror, behind the mirror। ठीक है,
behind the mirror. क्वेश्चन पूछा फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन पूछी इसमें, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन कहां है, बिहाइंड द मिरर, कहां पे है, बिहाइंड द मिरर, एंड इट्स नेचर एंड साइज। मैंने आपको बताया बेटा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है 99.9% 100% मोस्ट प्रोबेबली हम कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो हमेशा चाहे मिरर है चाहे लेंस है उसके फ्रंट में ही रखा जाता है, लेकिन 0.1% के केसेस में ऐसा होता है, 0.1 आई एम आस्किंग होता है 0.1%, वो भी बहुत रेयर है बेटा, किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐसा जाता है जो ऑब्जेक्ट आपका दूसरी साइड में रखा हुआ है, ठीक है कि नहीं, तो उस केस में दैट्स अ सेपरेट मैटर, लेकिन वो आपके लेवल के नहीं है, वैसे क्वेश्चन आपके 12th क्लास में आएंगे, ये तो आपके बिल्कुल सिंपल है, और 10th क्लास के लेवल के लिए जितने भी केसेस हैं ऑब्जेक्ट जो है हमेशा किसमें रखा गया है, फ्रंट में रखा गया, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आप लोगों ने हमेशा नेगेटिव ही लेना है, कैसे लेना है, चाहे क्वेश्चन आपका मिरर में है चाहे क्वेश्चन आपका लेंस में है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा हर क्वेश्चन में आपने कैसे लेना है, नेगेटिव ही लेना है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, क्लियर, ओके लेट्स सी, now magnification, as we know that magnification is given as क्या जाएगी, m is equal to h dash upon h is equal to minus v by u, फॉर्मूला डिस्कस किया हमने पिछले लेक्चर में, ओके, h आपके पास क्या है, यहाँ पे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, h क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा, h डैश आपके पास क्या है, दिस इज साइज ऑफ इमेज, दिस इज साइज ऑफ इमेज, ओके, m is equal to h dash upon h, so from here h dash, what is the value of h, value of h is 5 centimeter, h dash upon 5 is equal to minus what is the value of v, 60/7, चाहे मैं ये यूज करूं चाहे मैं ये यूज करूं, लेकिन इसको मैंने फ्रैक्शन में से लिखा क्योंकि सॉल्व करने में इजी रहता है, ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v हियर, 60/7, and what is the value of u, the value of u was going to be minus 20, u की वैल्यू कितनी थी, minus 20, तो माइनस माइनस कैंसल, 23 जा 60, तो यहां से क्या जाएगा आपके पास, h डैश अपॉन 5 इज इक्वल टू 3/7, ठीक है, तो h डैश की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, h डैश इज इक्वल टू 3 into 5 अपॉन 7, क्या हो जाएगा 15/7, 7 2 जा 14, 1 10 1 get 7 1 just 7, 3 7 4 just 28, तो इमेज का साइज जो आपके पास आ गया h डैश, क्या है ये, साइज ऑफ इमेज कितना है ये, 2.14 सेंटीमीटर, तो साइज ऑफ इमेज कितना आ गया आपके पास, 2.14 सेंटीमीटर, तो यहां से क्या क्लियर है बेटा, यहां से क्या क्लियर है आपके पास, तो साइज ऑफ इमेज h dash is equal to 2.14 सेंटीमीटर, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था आपके पास, ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर, 5.0 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज कितना, 5.0 सेंटीमीटर, तो एक चीज तो क्लियर है, यहां से ना फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज आपने बता दी बिहाइंड द मिरर, नेचर एंड साइज, तो नेचर कैसा है इसका, इमेज फाउंड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, so image found is, so image found is
virtual, erect and diminished. जो इमेज आपकी बनी है कैसी है, दूसरी तरफ बनी है वर्चुअल है, इरेक्ट होती है सीधी, इरेक्ट कौन सी है, सीधी, क्योंकि जो रियल इमेज होगी बेटा वो हमेशा ही इन्वर्टेड होगी, नेगेटिव साइन आएगा उसका। तो ये जो आंसर कैसा आपका पॉजिटिव है वो है 2.14 है, तो इमेज आपकी वर्चुअल है, इरेक्ट है और कैसी है, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड नहीं होते हैं स्मॉल, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज कितना था 5 सेंटीमीटर था, इमेज का साइज कितना है 2.14 सेंटीमीटर, मीन जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कैसी है, स्मॉल है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज। सो डियर स्टूडेंट्स, you can solve this question, you can make the practice of this question again and again, that's why you can do the better in the physics. And I think most probably there is going to be a unit test examination with effect from 23rd November. So dear students, there must be better preparation of these concepts. Make practice again and again of this type of questions. Okay, thank you, have a nice day.